At लेन Club, we believe that हर strong portfolio के पीछे होता है एक strong financial advisor. Hi everyone and welcome to the Expert Circle where you get a front row view to conversations that really matter in the financial world. आज हम बात करेंगे इन experts और इन storytellers के साथ जो शेयर करेंगे अपने wisdom, journeys and those insights that really matter और सच में काम आते हैं in today's financial world. तो शुरू करते हैं. Welcome, Mr. Bhatt. Let's get straight to it. Why don't you start by telling us a little bit more about yourself so that the listeners get to know you और आपकी financial space में journey कैसे शुरू हुई? Surely, thank you for having me. So basically, मेरा जो career है वो 2007 से start हुआ. I've done my certified financial planning and worked with a few corporates under the domain of financial planning and wealth management. And then I've started my own journey in the year 2014. Completed almost 11 years. My firm name is Money Mantra. And yes, managing the client's money. Wonderful. It's so nice to hear about your journey. And obviously, your current business is focusing on very important aspects. But, with the changing behavior, आपका business कैसे evolve हुआ है over the years? See, Avan, to be very frank, एक observation रहा है मेरा ये इतने सालों में कि education लोगों को नहीं है in terms of personal finance. They do their own investments, but कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, it's a pure lacking I felt. और वही पॉइंट पर ऊपर मैंने फोकस किया in this last 11 years when I have started my own firm. And majorly, I personally feel that it should not be the luxury, but it should be the necessity for everyone. And I'm still working on the same. Absolutely, it is a necessity. और generally आप किस type के financial products के साथ काम करते हैं? So it's a evolved thing. जब शुरू में था तभी as I mentioned कि मैंने education पे ज़्यादा focus किया, empower करने की कोशिश की कि exactly कहाँ पे होना चाहिए. और to begin with जो normal plain vanilla traditional products होते हैं, although I am very much inclined towards the mutual fund product because simplicity है और क्विकली अगर आपको एवरी मंथ भी इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से कर सकते हो. एंड एज आई मेंशन कि डिजिटाइजेशन आया इंडिया में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स आए, तो चेंजिंग टाइम के साथ मैंने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अपने ओवरऑल एडवाइजरी में इनकॉर्पोरेट किया. और फिर अगर आपका हो प्रोडक्ट्स के नाम तो डिजिटल गोल्ड से लेकर पीयर टू पीयर लेंडिंग और वेरियस जो PMS प्रोडक्ट्स होते हैं, AIFs होते हैं, या डेफिनेटली नो डाउट जो सेगमेंट होता है वो थोड़ा इवॉल्व सेगमेंट के लिए मैंने वो प्रॉपरली जो होने चाहिए प्रोडक्ट्स जो सजेस्ट करने चाहिए जिनको, उनको किए. Okay, so that's how you've evolved. Or if we look at the Indian investment landscape, काफी fast change हो रहा है. तो what are your thoughts on now how alternate investment options are becoming quite mainstream? So मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो यंगर जनरेशन आ रही है, जो दोज हु आर अर्निंग a good amount of money, but they don't know the direction. Although they know the markets, equity markets, mutual funds and all, but they wanted a higher return and they have a risk appetite also. So definitely ऐसे evolved timing में और जिस तरह से इंडिया evolved हो रहा है in terms of products also, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड आती है. लोग पूछते हैं कि भाई इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्रोडक्ट क्या है, P2P प्रोडक्ट क्या है, उसमें कैसे किस तरह से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है. और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहा है कि दे आर आस्किंग फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट बिकॉज फिक्स डिपॉजिट्स जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है इट्स नॉट यील्डिंग मच मोर टू देम, राइट. तो वहाँ पे फिर उनका ये आता है कि अगर फिक्स डिपॉजिट्स करना है और I am getting around 5 to 6%, and looking at the current scenario as well, जहाँ पे interest rates are decreasing, downturns पे है, तो if any particular product is available where I will get more returns, more interest on my investments, and I am ready to take the risk also, right? So they are asking me about a different product apart from traditional mutual funds or a fixed deposits or a insurance investment products.
So, are you seeing this shift, and what do you think is driving this interest towards these non-traditional investment categories now? So as I mentioned, that somewhat the economy demands it. In right now in our economy, that it is booming economy, emerging economy, and where scale is there, different product availability is there. But yes, education is not there. People are not aware much about different products, different options available in the market. So majorly जो जिस तरह से जहाँ पे और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है मेजरली right now. Moreover, social media or Yeah. mainstream media is pushing the capital markets, equity markets product. But yes, there are some different types of debt products available in the market where you can fetch more returns than the traditional debt products. Like if you can look into the bonds or NCDs, non-convertible debentures, and if you say on the other side, products like a P2P or a inverse discounting, where you can fetch around 10-12% kind of a returns. So yes, so the shift is there for sure, but education is not there. Yeah. And people are definitely look into the products, but look into the safety of the products, transparency, and the risk management. These are the aspects they are look into such kind of a products. और ये एस्पेक्ट्स देखना जरूरी भी है. एंड इन योर व्यू यू स्पोक अबाउट सो मेनी ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. सबसे ज्यादा ट्रैक्शन ये एआईएफ्स में कहाँ पे है? सो अगर इसको मैं कहूँ तो हम जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करके देखें कि जैसे म्यूचुअल फंड्स को भी काफ़ी साल हो गए एक पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए. और कब एस्टेब्लिशमेंट आया? जब वहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने दिखाई कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस स्टॉक्स में कर रहे हैं, फैक्ट शीट्स के जरिए, कम्युनिकेशंस के जरिए. और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स अभी जस्ट बिगेन इन द मार्केट, राइट? लास्ट 3-4 ईयर से अगर टू कंपेयर द पर्टिकुलर शिफ्ट विद द पीयर टू पीयर लेंडिंग प्रोडक्ट्स, पहले जब शुरू में आया तभी डेफिनेटली लोगों को डर था कि भाई एक ऑल्टरनेट है, ऑल्दो कोई पर्टिकुलर बॉडी उसको देख रही है, नहीं देख रही है, किस तरह से वो लोग मैनेज कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो वो सब चीज एम्बिग्विटी थी. बट अगर अभी लास्ट 1-2 साल में रेगुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कंपनी ये प्रोडक्ट्स कर रही हैं उनके नजरिए से देखें, तो दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू देयर इन्वेस्टर्स, दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू देयर पार्टनर्स एज वेल. कहाँ पे रिस्क मैनेज हो रहा है, किस तरह से वो लोग कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. 1 रुपए से लेकर अगर मान के चलिए 1000 रुपए भी अगर वो किसी को दे रहे हैं तो वो किस लोगों को दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं. So each and every transparency is now available because of this digitization and the कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वो कंपनी की भी एक इंटरेस्ट है और एक बताने की एक तरीका है कि किस तरह से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें जुड़ सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो आपने ये ट्रांसपेरेंसी के बारे में काफ़ी बात किया है, बट इफ़ वी वर टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अलावा ये नए तरीके एक्सप्लोर करने में क्या कुछ ट्रस्ट डिफिसिट है या ट्रस्ट गैप है अभी भी? एब्सोल्युटली. क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और आने भी चाहिए, पर कई बार वो जो रेगुलेशंस आते हैं और फ्रिक्वेंटली आते हैं तो जो इन्वेस्टर्स होता है उसके मन में भी कभी-कभी डाउट होता है कि इतने रेगुलेशंस क्यों आ रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट थिंग, राइट? बट लोग जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एडवाइजर से समझेंगे, कोई अगर उनके साथ कोई हैंड होल्ड करने वाला है और वो उनको गाइड कर सकता है कि भाई एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट वर्क कैसे कर सकता है. आपके पास सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट वो चीज का है, या तो आप सोचकर आप ये करते हो कि नहीं मेरे पास तो मैं वो रिस्क मैनेज करने के लिए उसकी क्षमता रखता हूं, बट उससे नहीं चलेगा. उससे भी ज्यादा आगे जाकर आपको वो प्रोडक्ट को आपको समझना पड़ेगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल समझनी पड़ेगी, उसका वो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और तरीका समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट है. एज वी मेंशन कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, और वो चीज आप ज्यादा एज एन इन्वेस्टर आप ज्यादा इंटरेस्ट लोगे
तो आप समझोगे और तभी ही आपका कॉन्फिडेंस उस पे बढ़ेगा। Absolutely. It's important to do your homework also. एब्सोल्युटली। And within the alternative investment space, we've seen P2P or peer-to-peer lending that has really picked up quite a bit. आपका रेडार पे ये कब आया? सो मैंने सबसे पहले वो 2019 में देखा और 2019 में एक कंपनी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ये आप आपके इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। सो जो हमेशा जैसे मैं करता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो पहले मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरे क्लाइंट को कोई सजेस्ट करने वाला हूँ तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट कितना सही है। और 2019 में मैंने किया, 2-3 साल मैंने देखा किस तरह से वो प्रोडक्ट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे सकता है, बेटर तरीके से रिस्क मैनेज कर सकता है और किस तरह से ओवरऑल जो क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है, वो ओवरऑल रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा खासा बन सकता है। और फिर 2021 और स्पेशली ट्रिगर पॉइंट था कोविड का टाइम, जहाँ पे वो टाइम को भी ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने, P2P इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया और अच्छे खासे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को आए। तो 2021 से काफ़ी अच्छा मोमेंटम मुझे मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में मैंने पिक किया और खुद भी मैंने इन्वेस्ट किया। Absolutely. So for the past few years, you could say, पर जब आपने पहले सुना P2P के बारे में, तो what was your first impression, especially risk reward के बारे में? देखिए, कोई भी कंपनी जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है, तब थोड़ा सा डाउट तो आता है कि किस तरह से आता है ये, किस तरह से ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। ऑल्दो प्राइमा फेसी सुनने के लिए तो ऐसा ही लगा कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही प्रोडक्ट है, बट किस तरह से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आते हैं, किस तरह से वो लोग रिस्क मैनेज करते हैं, किस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है इंटरनली, जो जहाँ पे वो एडवाइज़र को जोड़ते हैं, इन्वेस्टर को जोड़ते हैं, खुद एज अ प्लेटफॉर्म भी वो आते हैं। तो पहले तो थोड़ा-सा ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा-सा मैं फ्रंट फुट पे नहीं जाकर बैक फुट पे गया और देखा, समझा और पहले खुद इन्वेस्ट किया और पूरा ओवरऑल चीज़ों को समझने के बाद ही फिर मैंने आगे इनिशिएट करके मैंने फिर मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया। तो जब आप सजेस्ट कर रहे हो ये P2P लेंडिंग, आपके ओपिनियन में P2P लेंडिंग कैसा फिट हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में या इन्वेस्टर के लिए? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करो, P2P करो या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करो, तो एक 2 टाइप के पोर्टफोलियोज़ होते हैं, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो मैं इसको डेफिनिटली कोर पोर्टफोलियो में नहीं रखूँगा, मैं उसको सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखूँगा, जहाँ पे आप 10 टू 20% ऑफ योर मनी जो आपका डेट एलोकेशन है, वहाँ पे आप एक्सपोज़र ले सकते हैं, ऐसे आपके पैसों के साथ। तो डेफिनिटली सैटेलाइट पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो में आपके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड कह सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स कह सकते हो या इन दैट सेंस फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी कह सकते हो, जो रिस्क और रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोर पोर्टफोलियो में जाएगा और ऐसे प्रोडक्ट्स जो P2P है या इनवॉइस डिस्काउंटिंग है, वो आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप फिट कर सकते हो। ओके, सो नॉट इन द कोर पोर्टफोलियो, राइट। अंडरस्टूड। और आपका लेन-देन क्लब में काफ़ी टाइम से एसोसिएशन हुआ है। हाउ हैज़ इट बीन बेनिफिशियल टू यू, और कुछ उनके बारे में बता सकते हैं? सो इन टर्म्स ऑफ P2P अगर बात करें अमान, तो देयर आर फ्यू कंपनीज जो P2P प्रोडक्ट्स लेकर आई, बट कितनी कंपनियां रेगुलेशन के साथ कॉप अप हो सकी और आगे बढ़ सकी। और उसमें अगर पहला नाम देखें तो मुझे लगता है लेनदेन इज द कंपनी, जहाँ पे उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू और रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सारे चीज़ों को अब तक तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से टिक मार्क किया हुआ है कि जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात हो, इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी देते हैं, पार्टनर को ट्रांसपेरेंसी देते हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, टाइम टू टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है और जो कंप्लायंस मैनेज करना है पूरा एज पर दी रेगुलेटरी बॉडी, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अब तक मैनेज किया है एज फार एज लेन-देन कंपनी इज कंसर्न। और कैसे रिस्पॉन्स मिला है P2P लेंडिंग में? आई एम श्योर दैट देयर हैव बीन मेनी सक्सेस स्टोरीज, क्वाइट अ बिट ऑफ फीडबैक फ्रॉम इन्वेस्टर्स, थोड़ा शेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्वेस्टर्स को अच्छा ही लगता है जब उसको अपने जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, तो एक्सपीरियंस तो उनको अच्छा ही लगता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरा एक्सपीरियंस लेन-देन के साथ अभी लास्ट 1-2 साल से हुआ है। ज़्यादा मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स मेरे क्लाइंट्स के नहीं करवाए हैं, बट जितने भी क्लाइंट्स के हुए हैं वो वहाँ पे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। द ओनली रीज़न इज़ दैट कि ट्रांसपेरेंसी and the way they are the whole process structured
इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑल, तो वो काफ़ी एनकरेजिंग था मेरे लिए और मेरे इन्वेस्टर्स के लिए। एब्सोल्युटली। और अभी भी कोई समझो कोई पार्टनर अभी भी अनश्योर है P2P लेंडिंग के बारे में, व्हाट इज द मैसेजिंग दैट यू वांट टू सेंड आउट, व्हाट डू यू वांट टू से? आई थिंक जिस हिसाब से इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है और उसमें जिस तरह से रेगुलेटरी जो चाहता है कि किस तरह से ये इंडस्ट्री आगे जाकर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करनी चाहिए, तो कोई भी पार्टनर अगर एसोसिएट होना चाहता है तो सबसे पहले ये देखना जरूर चाहेगा कि जो रेगुलेटरी बॉडी कहता है उस तरह से वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या वो पर्टिकुलर कंपनी पॉप अप हो रही है या नहीं हो रही है। और दूसरी चीज की ट्रांसपेरेंसी, कितने हद तक ट्रांसपेरेंट होकर आप आपके पार्टनर को या तो आपके इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर आप उनको कम्युनिकेट करते हो और ये पूरा जो एक जर्नी है उसको आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए मेट कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है P2P लैंडिंग का फ्यूचर कैसे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, और टेक्नोलॉजी भी इज प्लेइंग अ बिग रोल? आई थिंक जो अगर हम टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज की बात करें जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा रहता है और एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि भाई वही बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट्स होती है वहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पे आगे जाकर P2P के लिए मुझे लगता है डिजिटाइजेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जो डेफिनेटली इन्होंने P2P कंपनीज ने काफ़ी अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया है। बट जो रेगुलेशंस हैं वो रेगुलेशन को सेंटर स्टेज पर रख के आप कैसे इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करते हो, कैसे कॉन्फिडेंस देते हो कि भाई ये आपके जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से उससे थोड़ा अलग है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप इक्विटी के लिए रेडी हो तो डेट मार्केट में इक्विटी जैसा कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपको ज्यादा, अगर आप रिस्क लेने का एपेटाइट रखते हो तो उसके जैसा रिस्क लेकर आप ज्यादा रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा डेट मार्केट में ले सकते हो। Absolutely. Or lastly, any advice that you would give to the audience, those who want to really stay ahead of the alternate investment curve? What advice would you give them? आई थिंक एज वी डिस्कस एज आई स्पोक ऑल्सो कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही इवॉल्व हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट्स आ रहे हैं और उसमें जितना आप एजुकेट आपको खुद को करोगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, नो डाउट अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी तो हेल्प ले ही सकते हो, बट आप खुद से भी ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट समझोगे, उसका रिस्क मैनेजमेंट समझोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कन्विंसिंग के साथ आप ये जो रिटर्न्स ज़्यादा जो लेने की आपकी उम्मीद है कि भाई मुझे रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट से, वो आप ओवरऑल हासिल कर पाओगे। बट आपको खुद को भी उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, खुद को भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से वो प्रोडक्ट, और उसमें बेसिकली रिस्क जो है वो रिस्क अगर आप समझोगे ना तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ज्यादा कन्विंसिंग आएगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। Absolutely, Mr. Bhatt. I think you've really hit the nail on the head, given us a all-round view ki how it's so important, risk reward, technology, investor awareness, and most important, doing your own homework Absolutely. as well is absolutely critical. And now we are seeing the future of alternate investments looking very bright. All right. Thank you so much for Thank you. joining My us. pleasure.